start with our first sum in account current, that is the first sum of your pamphlet. Let's read the sum. The following are the series of transactions between A and B for 3 months ending on 31st March 2017. Calculate the amount of interest to be payable by one party to the other at 10% per annum. So we are given with 10% and we have to render this account on 31st of March 2007. Now we are given with months, books of A. Now A is rendering this account in the books of A. Now on the 1st Jan we have an opening debit balance of 5,000. Then on Jan 10th we sold goods to Mr. B. From 15th Jan we received cash from B. Then again on 15th February we sold the goods to B. And then last on 1st March we received cash from Mr. B. Now these many transactions took place from January onwards and we have to render the account on 31st of March. So we need to make our current account which will be ending on 31st March 2017. That is our date of rendering the account. तो इस तरह से फटाफट इन द बुक्स ऑफ ए, बी इन द करंट अकाउंट ऑफ ए, एंड वी आर रेंडरिंग दिस ऑन 31st of March 2017. ऐसा हम फॉर्मेट बना लेंगे इन द बुक्स ऑफ ए. Now we have a debit side, date, particulars, due date, days, amount and interest. And then on the credit side again the same thing will be followed: date, particulars, due date, days, amount and interest. So what you're supposed to do, you need to pause the video, make this format in the notebook, and then again restart, and then we read the sum together, and then I do the posting, then you do the posting one by one. तो वीडियो पॉज करके फटाफट फॉर्मेट बना लेना. हम सम की शुरुआत करते हैं. चलो सम की हम शुरुआत कर लेते हैं. पहले दिया है 1st जनवरी को ओपनिंग डेबिट बैलेंस. नाउ क्लियरली इट सेज इट्स ओपनिंग डेबिट बैलेंस. तो 1/1/2017 हम ओपनिंग बैलेंस will be writing it onto the debit side because the balance we show it onto the debit side. So the amount is 5,000 rupees. The amount is 5,000. Now due date, our due date यहाँ पर देखो 1 जनवरी को हमने उसका ओपनिंग बैलेंस है तो इसकी ड्यू डेट कुछ नहीं दी है. तो वी read it in our previous lecture कि when the due date is not given, the date of transaction itself will be taken as a due date. So 1st January 2017 itself will be taken as our due date. अब डेज और इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए ज़रा समझो. हमने यहाँ पर ऑलरेडी मैंने वर्किंग नोट्स बना के रखी हैं डेज एंड इंटरेस्ट के लिए. तो फर्स्ट वर्किंग 1 जनवरी से हम देखो डेज गिनेंगे जब तक हम ये अकाउंट करंट को रेंडर कर रहे हैं. फ्रॉम द ड्यू डेट टिल वी रेंडर द अकाउंट करंट, उसके पीरियड का डेज हमें कैलकुलेट करना है. तो 1 जनवरी को ही हमने ये ट्रांजैक्शन हमारा ड्यू डेट का था. तो जनवरी के पूरे 31 डेज, फेब्रुवरी के पूरे 28 डेज और मार्च के 31 डेज. बेटा यू नो दिस, वी डिड दिस थिंग्स इन एवरेज ड्यू डेट. सो टोटल अगर हम करें तो इट कम्स टू 60 डेज. ओके, अब 60 डेज है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा. 5,000 की ओपनिंग बैलेंस की अमाउंट है इनटू हमें 10% करना है, इनटू हमें 10% करना है, इनटू 90 डेज का इंटरेस्ट गिनना है. 90 डेज, सॉरी 60 डेज नहीं हो रहे यहाँ पर, 90 डेज हो रहे हैं. 60 डेज नहीं हो रहे, 3 मंथ्स जैन फेब एंड मार्च, तो टोटल 90 डेज हो रहा है. सो 90 इंटू 90 डिवाइड बाई 365 हमको करना है. 90 डिवाइड बाई 365 हमें करना है. सो उसका टोटल अगर हम देखें तो उसका टोटल अगर हम देखें तो 123.29 इतना अपने को इंटरेस्ट आएगा. 123.29 इतना अपना इसका इंटरेस्ट आएगा.
तो ड्यू डेट के बाद डेज हम लिख देंगे 90 डेज, और इतने दिन का इंटरेस्ट ड्यू हो गया है 123.29, इतना इंटरेस्ट हम लेंगे उससे, बिकॉज उसने हमको पैसा नहीं दिया और 31 मार्च को हम उसको अकाउंट करंट बना के दे रहे हैं, तो 90 डेज का हमारा इंटरेस्ट उस पर ड्यू हो जाता है। 90 डेज का इंटरेस्ट बिकम्स ड्यू। लेट्स सी द सेकेंड ट्रांजैक्शन। ऑन 10th वी हैव सोल्ड गुड्स टू बी। हम बेटा ए हैं, वी आर ए and we are making account of B, and now if I am selling goods to B, what journal entry will I pass? I am selling goods to B, so B is the receiver and what goes out is sales. B is the receiver, what goes out is goods, that is sale. तो मेरी journal entry आएगी B account debit to sales, B account debit to sales। तो मुझे ये यहाँ पर डेबिट साइड ही लिखना पड़ेगा वापस। I have to write the entry on the debit side, 10th of January 2017 to sales। अब ड्यू डेट कुछ दिया नहीं है, तो 15 जनवरी 2017 the date of transaction itself will be taken, and हमने कितने के गुड्स सेल किए जरा चेक करो। we sold goods of ₹10,000। तो डेज और इंटरेस्ट की वर्किंग के लिए हम बेटा वर्किंग नोट नंबर 2 पर जाते हैं, दैट इज 10 जनवरी से 31 मार्च। तो बेटा जनवरी में 31 डेज होते हैं, 31 में से 10 दिन निकल गए तो बचे 21 डेज। फरवरी का 28 डेज एंड मार्च का 31 डेज। तो बेटा टोटल करो 31 प्लस 21 दैट इज 52, and 52 plus 28 that is 80 days। 80 डेज का मुझे इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा 10,000 इंटू अगेन 10% इंटू 80 days डिवाइड बाई 365। बेटा कैलकुलेटर पर फटाफट जरा करो, मैंने तो करके रखा है कैलकुलेटर पर। 219.18 इतना इंटरेस्ट आएगा, 219.18 इतना हमारा इंटरेस्ट आएगा। सो इंटरेस्ट की ये फर्स्ट वर्किंग 123.29 दैट्स अवर फर्स्ट वर्किंग। देन सेकेंड वर्किंग में इंटरेस्ट आया 219.8, सो वो हम यहाँ पर इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे 219.18 कि हमें उसको अब 80 डेज के इंटरेस्ट हम उससे चार्ज करेंगे, बिकॉज हमने उसको सामान सेल किया था 10 तारीख को, अकाउंट रेंडर कर रहे हैं हम 31 मार्च को। सो पहले दो ट्रांजैक्शन हमने कर लिए, लेट्स गो टू द थर्ड वन। व्हाट डज इट सेज? 15 जनवरी को कैश मिला, बी से हमें कैश मिला, इतना सारा सामान हमने बेचा था, उसका ओपनिंग बैलेंस था, तो बी ने मुझे कैश दिया। सो हम बेटा ए हैं और एंट्री हम किस तरह से बनाएंगे? फॉर मी व्हाट कम्स इन इज कैश एंड हु इज द गिवर इज मिस्टर बी। What comes in is a cash and who is the giver? Mr. B. So cash account debit to Mr. B, हम ऐसी एंट्री मारेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी हम ऐसी एंट्री मारेंगे, तो B को क्रेडिट किया, तो 15/1/2017 हम यहाँ पर लिख देंगे बाय कैश। अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज की, ड्यू डेट 15 मार्च को ही 15 जनवरी को ही हम ले लेंगे, और नंबर ऑफ डेज अभी कैलकुलेट करके इंटरेस्ट का कैलकुलेट करेंगे हम ना। इंटरेस्ट कैलकुलेशन का यहाँ पर क्रेडिट साइड का मतलब क्या कि डेबिट साइड जो हमने उसको सामान बेचा था, जो हमने उसका ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था, अब देखो उसमें से कुछ पैसे आ गए, तो हमने डेबिट साइड जितना भी इंटरेस्ट ड्यू किया था, क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट लिखने का मतलब कि पैसे आए तो उतना इंटरेस्ट अब हमारा वेवर हो जाएगा, उतना इंटरेस्ट हमें उससे कम लेने का। आर यू गेटिंग इट? तो वो क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट यहाँ पर ऐसा इंडिकेट करेगा कि हमें जितना भी इंटरेस्ट लेना चाहिए था फ्रॉम 1 जनवरी, जहां से अपना शुरू हुआ टिल 31 मार्च, तो इंटरेस्ट वो डेबिट साइड हम दिखा रहे हैं, लेकिन बीच बीच में अगर पेमेंट आते जाते हैं तो उतनी अमाउंट का इंटरेस्ट हम उसको वेव दे देंगे, वेवर कर देंगे कि भाई तुमने इतना पैसा टाइम टू टाइम दे दिया था, तो इतना इंटरेस्ट तुम्हारा माफ हो जाएगा।
तो दैट इंटरेस्ट वी राइट इट ऑन टू द क्रेडिट साइड। तो हम डेज कैलकुलेट करते हैं एंड अमाउंट पर देखते हैं कितना इंटरेस्ट आएगा। तो 15 जनवरी से 31 मार्च अगर हम देखें तो 15 दिन जनवरी के निकल गए, तो यहाँ पर रहेंगे 16 डेज, फरवरी के रहेंगे 28 डेज और मार्च के रहेंगे 31 डेज। सो बेटा अगर हम ये टोटल करें 16 प्लस 28 प्लस 31 तो 59, 59 एंड 16 अगर हम करें तो दैट कम्स टू 75 डेज। 75 डेज हो जाएगा। और उसका अगर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करें तो बंदे ने 10,000 कैश दिया है, इनटू हम करेंगे यस 10% इनटू क्या से हम करेंगे 75 डिवाइड बाय 365 डेज। तो कैलकुलेशन करेंगे हम तो 205.48 इतने का इंटरेस्ट हमारा बैठेगा जो हमको क्रेडिट साइड पे लिखना है। एंड बिकॉज ऑफ द अर्ली पेमेंट दिस इंटरेस्ट इज टू बी वेव्ड ऑफ। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं, दैट कम्स टू 75 डेज। और इंटरेस्ट का अगर हम देखें तो 205.48 का अपना इंटरेस्ट बैठता है। ओके, नाउ 15 फेब को अगेन हमने गुड्स बेचे, बी को हमने गुड्स सेल किए हैं। तो बेटा इफ वी हैव सोल्ड गुड्स टू बी, व्हाट एंट्री विल आई पास? B is the receiver, what goes out is goods. तो B account debit to sales. So 15 February B account debit to sales. तो 15th Feb 2017 to sales. No due date given. तो 15th Feb 2017 itself will be taken. The amount of sales, कितने का सेल किया हमने? 10,000 का सेल किया है। तो हमें अब नंबर ऑफ डेज एंड इंटरेस्ट का वर्किंग करना पड़ेगा। सो 15 फरवरी हो गए हैं, 28 का अगर महीना है, 15 दिन निकल गए तो 13 दिन बचे और मार्च के 31 डेज। सो टोटल अगर हम करें तो 13 प्लस 31 इज 44 डेज। एंड देन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अगर हम करें so 10,000 into again 10% into 44 divide by 365 हमें करना पड़ेगा। सो बेटा कैलकुलेटर उठा लो, जरा देखो कितनी अमाउंट आ रही है। कैलकुलेटर उठा लो, मैंने तो पहले से ही कैलकुलेट कर दिया है। द अमाउंट कम्स टू 120.55 120.55। तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पर 44 ले लेंगे, 120.55 दैट्स माय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। 120.55 दैट्स माय अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड बट ऑन 1st of March वी हैव अगेन रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर बी। वापस हमको कैश मिला 1 मार्च को। सो 1/3/2017 कैश मिला है। व्हाट कम्स इन एज अ कैश? हु इज द गिवर? मिस्टर बी। सो कैश अकाउंट डेबिट टू बी, इसीलिए करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड हम लिख देंगे बाय कैश। ड्यू डेट नॉट गिवन, तो 1st March itself will be taken as our due date. Amount given by him is 10,000. Let's do the last working for number of days and the amount of interest to be calculated. 1st March से अगर हम कर रहे हैं so 30 days, 1st March से कर रहे हैं 31 डेज का महीना है तो 30 डेज हमारा होगा। एंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन किस तरह से होंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन वापस 10,000 है इंटू 10% है इंटू 30/365। तो टोटल मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ज़रा अपने कैलकुलेटर पर मंत्रो कुछ देखो ज़रा क्या ये इंटरेस्ट आपका आ रहा है। इंटरेस्ट आएगा 41.10। सो बिकॉज ऑफ द पेमेंट आई एम गिविंग इंटरेस्ट वेवर, या तो इंटरेस्ट उतना क्रेडिट हो गया जितना हमने डेबिट किया था। So 30 days early payment and you get a credit of interest of 41.10 rupees. Okay,
But no other transactions we have, no other transactions we have now. अगर हमने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का अगर हमने समझा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन का अगर हमने समझा है, तो पहले हमें इंटरेस्ट के कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा, इंटरेस्ट के कॉलम को क्लोज करना पड़ेगा. अब अगर मैं इंटरेस्ट का कॉलम सबसे पहले क्लोज करूं एंड इफ आई कंपेयर, तो डेबिट साइड का 123, 219, 120 ने, क्रेडिट साइड 205 एंड 41, तो डेफिनेटली ડેબિટ સાઈડનું ટોટલ વધારે લાગે છે, ડેબિટ સાઈડનું ટોટલ વધારે લાગે છે, that is 463.02. now that's the total of the debit side. अब यही टोटल हम बेटा क्रेडिट में लिख देंगे, यही टोटल हम क्रेडिट में लिख देंगे 463.02, यही टोटल क्रेडिट में लिख देंगे. और उसमें से ये दोनों अगर हमने माइनस करा, अगर हमने ये दोनों उसमें से माइनस करा, तो उसका बैलेंस कितना आता है हम वो चेक करते हैं. व्हाट्स द बैलेंस, व्हाट्स द बैलेंस, तो हमको इसमें से माइनस करने हैं ये दोनों चीजें. तो इसमें से ये दोनों चीजें अगर हमने माइनस करी तो 216.44 इतना इंटरेस्ट का बैलेंस निकलता है. सो 31st March 2017, दिस इज बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट. मतलब डेबिट साइड इतना इंटरेस्ट इसका ड्यू हो गया था क्योंकि उसका ओपनिंग बैलेंस था, हमने सेल किए थे 2 बार, लेकिन बिकॉज ऑफ द अर्ली पेमेंट उतना इंटरेस्ट उसका वेव ऑफ हो गया, उतना इंटरेस्ट का पेमेंट एडजस्ट हो गया. तो नेट अब कितना रुपया मेरे को उससे लेना है, 216.44, इतना हमें नेट इंटरेस्ट उससे लेना है, इतना हमें नेट इंटरेस्ट उससे लेना है, दैट इज 216.44, इतना हमें नेट इंटरेस्ट लेना है. एंड अभी हमने मतलब प्रीवियस लेक्चर में, अभी तो नहीं बोल सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि जो भी बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट आएगा, टेक इट टू द ऑपोजिट साइड इन द अमाउंट कॉलम. तो हमको ऑपोजिट साइड अमाउंट कॉलम में ले जाने का 31/3/2017 के बी से हमें इतना इंटरेस्ट लेना है. सो यहाँ पर हमको टू इंटरेस्ट ऐसा हम लिख देंगे, टू इंटरेस्ट, एंड इन द कॉलम ऑफ अमाउंट 216.44 टू इंटरेस्ट. सो दिस विल गिव मी माई फाइनल अमाउंट के मुझे, दिस विल गिव मी माई फाइनल अमाउंट के मुझे कितना पेमेंट अब लेना है बी से, कितना ड्यू है. व्हेन आई एम रेंडरिंग दिस अकाउंट करंट, हाउ मच अमाउंट इज ड्यू एंड हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वाज पेएबल एंड रिसीवेबल, वो सारी चीज़ें हमारी आ गई. तो अब हम इसका टोटल कर लेते हैं एंड फाइनल बैलेंस हम ढूंढ लेते हैं. लेट्स डू द टोटलिंग पार्ट एंड लेट्स गेट द आंसर. मेरा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, दैट इज़ फॉर श्योर. ओ कुछ गलत आया है, डेबिट साइड का टोटल गलत है, ये फॉर्मूला गलत डल गया है. नो प्रॉब्लम, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, चेक चेक चेक. सम, ये इनका हम सम कर लेते हैं. ओ वापस कुछ गलती मारी है, रुक जाओ, हम करते हैं, एस्केप कर देते हैं पहले सब कुछ, एंड यहाँ पर हम इक्वल टू सम लिख के ये हम कर देते हैं. यस, 25216 दैट्स द टोटल ऑफ योर अमाउंट. अब इसी को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख देंगे क्योंकि क्रेडिट का टोटल कम था, तो 25216.44, और उसमें से ये 20,000 माइनस कर देंगे हम, उसमें से अगर 20,000 माइनस कर देंगे हम तो 5216.44 इतना का बैलेंस बचेगा. व्हेन वी रेंडर द अकाउंट ऑन 31st of March 2017, this will become by closing balance and this much amount is due to be received from Mr. B. ये अपना क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, इतना अमाउंट हमको मिस्टर बी से रिसीव करना है. दैट इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस आर आवर टोटल्स, जो हम डेबिट क्रेडिट दोनों साइड लिख देंगे. डेबिट क्रेडिट दोनों साइड हम ये टोटल्स लिख देंगे एंड देन वी गेट आवर क्लोजिंग बैलेंस.
So this is the amount which is to be received from Mr. B, 5216.44 after doing all the transactions, right? I hope beta the sum was quite easy. The interest working was also very easy. Complete the sum. Okay, we might do one more sum if this sum is, you feel it's a bit complicated. एक इसका जैसे एक और सम भी कर सकते हैं, या तो फिर सेकंड मेथड अब मैं स्टार्ट कर दूंगा, दैट इज बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड. यही अकाउंट करंट बनाने की सेकंड मेथड. इफ रिक्वायर्ड एक और सम भी हम इस पे कर सकते हैं. नॉट टू वरी. चलो बाय, टेक केयर, बाय.